It is one of the important questions, and I will be helping you with the answers of the question, and we will be discussing everything mutually. As I have told you and telling you every time that whenever you will be starting your English as an exam, that is my view, my suggestion to you. Always start from section B, and always start from section C, and here we are starting up with the section C. तो बच्चे, first question is a extract based question. The first question says, where did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seems to be? They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? तो बच्चे, पोम जो है ये कौन सी पोम है और इस पोम का पोएट कौन है? कौन बताएगा? Who will tell? बच्चे, who is the poet and from which poem this extract has been taken? Childhood, Marcus Newton. Very good. This poem has been taken from Childhood, और जो इसका poet है वो मार्कस न्यूटन है. Okay. Second question, if we talk about, we are on the second question. First question has been done by us. What does the poet experience about the adult? Poet ने क्या adult के बारे में experience किया है? क्या अनुभव है उसका, poet का? Class, I really want you to open the cameras. Please open the cameras. I want a two-way communication session today. क्या सोचता है adult? पोएट अडल्ट के बारे में? वो ये सोचता है कि जो अडल्ट है वो हमेशा प्रीचिंग ऑफ लव करते हैं, बट इनफैक्ट जो लव है वो उनके एक्शंस में दिखाई नहीं देता. दे ऑलवेज टॉक अबाउट लव, दे ऑलवेज प्रीच लव, बट दे डजंट परफॉर्म एनी ऑफ द एक्शन विच रिफ्लेक्ट्स लव. इज इट क्लियर बच्चे? इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, moving to the next question. The next question says, when does the poet feel having virtually lost her childhood? कब लगता है पोएट को कि उसने अपना जो बचपन है वो लूज कर दिया है? ये तब लगता है. यस क्रिश मनसूत्रा. यस सर, जब वो 12 इयर्स का होता है तब उसको लगता है. वेरी गुड. जब पोएट जो है वो 12 इयर्स की एज को टच करता है, जब वो 12 साल का टर्न अप होता है, तो उसको लगता है कि इवेंचुअली ही हैज लॉस्ट हर चाइल्डहुड. वेरी गुड. ओके, सो बच्चे, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल बी टॉकिंग अबाउट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, but did not act so lovingly. Sorry, the fourth question of the extract based question, the fourth one says, explain but did not act so lovingly. So it has the same answer. The poet says that the adult talk of love. Adult जो है वो हमेशा प्यार की बात करते हैं. They preach love, but actually they are not loving and caring. मगर अपनी actions में वो loving और caring में नहीं होते. They seems lovingly only in talking, not in action. In action they are much different. और जो उनके actions हैं वो उनकी बातों से बहुत ज़्यादा अलग हैं. बच्चे, इस एक्सट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम किसी को? एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम इन दिस एक्सट्रैक्ट व्हिच हैज बीन टेकन फ्रॉम द चाइल्डहुड? नो सर. ओके, नो सर. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द ninth question. Yes, ninth question, they are the short answer type question which are based on your poem only, right? So 3 question will be there. Out of 3 question you need to attempt 2 question. The very first question says, the poet's mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? पोएट की मदर जो है वो स्नैपशॉट को देख के क्यों हंस रही है? पहले तो मुझे बताओ ये कौन सी पोइम का क्वेश्चन है? सर फोटोग्राफ. सर फोटोग्राफ की पोएटेस कौन है? सर शर्लेट ऑल्सन. वेरी गुड, शर्लेट ऑल्सन. तो बच्चे, जो पोएट की मदर है वो स्नैपशॉट को देख के क्यों हंस रही है? सर क्योंकि ये शो करता है कि मदर का जो चाइल्डहुड था वो काफी हैप्पी था. ओके बच्चे, स्नैपशॉट में स्नैपशॉट किसकी है? स्नैपशॉट क्या होता है? स्नैपशॉट होता है फोटोग्राफ. वो अपनी फोटोग्राफ को देख के क्यों हंस रही है? सर क्योंकि वो फनी लग रहे होते हैं, जो उन्होंने ड्रेस पहनी होती है बीच के लिए. वेरी गुड. फनी है वो.
हंसते हैं मतलब। एग्जैक्टली बेसिकली फोटोग्राफ में मदर की फोटो है अलोंग विद हर 2 कजन्स, ठीक है, मदर, बेली एंड डॉटी, बेली, बेटी एंड डॉली। और ये तीनों जो ड्रेसअप हैं ये बीच ड्रेस में ड्रेसअप हैं, इसलिए मदर जब अपनी फोटो को देखती है जिसमें उन्होंने बीच ड्रेस पहनी है उसको देख के वो हंसती है। और व्हाट डज दिस लाफ इंडिकेट? सर ये लॉ ऑफ इंडिकेट करते हैं कि जो पोइट की मदर है वो अपने चाइल्डहुड को याद करके की बहुत खुश होती है। वेरी गुड। और उसको लगता है कि जो चाइल्डहुड के डेज थे दोज वर द बेस्ट एंजॉयबल डेज फॉर हर, और उनको याद करके शी इज रिमेम्बरिंग दोज डेज एंड लाफिंग। ठीक है बच्चे? यस सर। Okay, moving to the next question. What does the phrase her barreled face identity mask means? कौन सी पोइम का क्वेश्चन है ये, कौन बताएगा? दी लबनम टॉप। वेरी गुड, लबनम टॉप का है। तो इसमें जो बैरल फेस मास्क आइडेंटिटी मास्क था गोल्ड फिंच के मुंह पे जो उसको मास्क कहा गया है, आइडेंटिटी मास्क कहा गया, वो क्या है? सर वो उसका मास्क है। नहीं, गोल्ड फिंच के मुंह पे जो उसका ब्लैक face स्ट्रिप्स है। हैं, राइट, उसके मुंह पे जो ब्लैक स्ट्रिप्स हैं जिससे वो पहचानी जाती है, वो है हर आइडेंटिटी मार्क। समवन इन बिटवीन वांट टू से समथिंग? बच्चे किसी ने कुछ कहा था बीच में? क्लास? नो यस सर। सर। ओके, No, वांट टू sir. से समथिंग? नो सर। ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चे? Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द पोम फादर टू सन हैज ए कंसिस्टेंट राइमिंग स्कीम? इसके अंदर राइमिंग स्कीम कौन सी है? बच्चे इसको आप मन में रखें, इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो है ABBCB स्कीम। ठीक है, राइमिंग स्कीम जो है वो है ABBCB। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes sir. Okay, so बच्चे coming to the next question, these are the short answer type question again which will be coming from your hornbills। ये आपके hornbill से आएंगे। 5 questions होंगे, out of 5 you need to answer 3 questions, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, तो आपको 9 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट करना है। बट ऑप्शन ये है कि 5 में से 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाई डिड द ग्रैंडमदर अकम्पनी द नरेटर टू हिज स्कूल? व्हाट डिड शी डू देयर? पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी का है, इसके जो ऑर्थर हैं वो खुशवंत सिंह हैं। तो यहाँ पे आई रियली वांट टू आस्क यू कि क्यों ग्रैंडमदर जो थी वो नरेटर को स्कूल छोड़ने जाती थी? क्योंकि जो सर नरेटर का स्कूल था सर वो एक टेम्पल के साथ अटैच था। वेरी गुड। सर जब वो उधर सर जब ग्रैंडमदर सर उसको छोड़ने जाती सर वो मंदिर में बैठ के सर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी सर, और जब स्कूल ओवर होता था तो वो खुशवंत सिंह के साथ घर आती थी। और घर आते आते क्या करते थे? सर स्ट्रे डॉग्स को स्टेज चपातीस डालती थी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बच्चे, दिस इज द परफेक्ट आंसर आई गॉट फ्रॉम हु गेव दिस आंसर? कृष और राहुल? सर राहुल शर्मा। Okay, Rahul, this is one of the best answer you have given and I really want to appreciate you for this answer. Basically जो स्कूल था, स्कूल की दीवार के साथ ही टेम्पल था, तो जब खुशवंत सिंह पढ़ाई करते थे तो ग्रैंडमदर अपना सारा टाइम जो था वो रिलीजियस स्क्रिप्टर्स में या प्रेयर करके निकालते थे, और जब शाम को उसको छुट्टी होती थी खुशवंत सिंह को, तो ये वापस घर आते थे, और घर आते आते ये स्टेल चपातीस देते थे स्ट्रीट डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज बच्चे हाउ डिड द फर्स्ट डिजास्टर स्ट्राइक द शिप? पहला डिजास्टर शिप को किस तरह से स्ट्राइक करता है? ये क्वेश्चन लिया गया है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई से। क्या हुआ था भाई बच्चे? कब कब हिट किया था वे वॉकर फर्स्ट डिजास्टर के साथ? क्या हुआ था 2 जनवरी को? चैप्टर पढ़ा किसी ने? सर ह्यूज वेव आई थी।
वेरी गुड। और क्या हुआ था सुधांशु? ओके, ये चैप्टर में थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। बेसिकली इस चैप्टर में एक बिजनेसमैन है, ठीक है, वो, उसकी वाइफ मैरी, उसकी बेटी सू, उसका बेटा जॉनथन एक वॉक पे जा रहे हैं। वॉक क्या होता है? समुद्री यात्रा, ठीक है। वो यूके के एक जगह है जिसका नाम है प्लायमाउथ। प्लायमाउथ से अपना जो वॉक है उसे वो स्टार्ट करते हैं। प्लायमाउथ से होते होते केप ऑफ टाउन में आते हैं। केप ऑफ टाउन में वो लैरी और हर्ब को बोर्ड करते हैं। लैरी और हर्ब कौन है? लैरी और हर्ब दो क्रूमैन है। वो क्यों इनको बोर्ड करते हैं? क्योंकि जो नरेटर है उसको पता होता है कि जो साउथ इंडियन सी है वो मोस्ट डेडलीस्ट है, वहां पे हो सकता है उनको किसी चैलेंज का सामना करना पड़ सके। वो साउथ इंडियन सी से होते हुए ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते हैं, राइट। तो जैसे ही ये साउथ इंडियन सी में एंटर करते हैं, ये अपना 25 दिसंबर क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाते हैं, ये अपना न्यू ईयर बहुत अच्छे से मनाते हैं। मगर प्रॉब्लम कब शुरू होती है? 2 जनवरी को। कब शुरू होती है? 2 जनवरी को। 2 जनवरी को गैगेंटिक वेव्स चल रही होती हैं, मतलब कि ऊंची ऊंची लहरें चल रही होती हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग गेल्स चल रही होती हैं। गेल्स क्या होती हैं? बहुत ही मजबूत हवाएं। गेल्स हवा को कहते हैं, ठीक है, विंड को कहते हैं, चल रही होती हैं। तो शाम को क्या होता है? शाम को जो ये गेल्स हैं ये चलना बंद हो जाती हैं और जो स्काई है वो ग्रे टर्न अप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और एकदम से एक वेव आती है, वर्टिकल वेव, और वो वेव वॉकर को हिट करती है। और दिस वाज द फर्स्ट डिजास्टर विच स्ट्राइक दी शिप, और शिप का नाम होता है वेव वॉकर। क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके, so coming to the next question is taken from Silk Road. In this question it has been written, why was the narrator disappointed with Darchan? Narrator Darchan से क्यों disappointed था? Who will answer? सर क्योंकि जो डार्चन में नरेटर को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी और उनको मतलब कि अच्छे से सो नहीं पाए थे क्योंकि उनकी जो नोज था वो बंद था। और जो वो प्लेस थी डार्चन था वो बहुत ही मतलब कि गंदा था वहां पे। नहीं मतलब बच्चे, कि ये वहां पे कहीं नहीं लिखा है, ये कहीं नहीं लिखा कि वहाँ पे गार्बेज था। ये गाइड्स में लिखा है, आप गाइड पढ़ रहे हैं। दिस इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो ओके, मतलब और वो कि डर्टी प्लेस थी। डर्टी थी मतलब कि वहां पे वो क्या हुआ था? जो प्लेस थी डार्चन वो मतलब कि बहुत ही गंदी थी, मतलब ऐसे डर्टी थी। हाँ सर, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। बिल्कुल, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। बेसिकली यहाँ पे दार्चन में आपने 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक, जब ऑर्थर का फर्स्ट नाइट था दार्चन में, उसको हेल्थ इश्यूज हो गए। हेल्थ इश्यूज क्या हो गया कि उसका नोज जो है वो ब्लॉक हो गया, ठीक है, उसके नॉस्ट्रल ब्लॉक हो गए। उसने हर्बल टी ली मगर फिर भी उससे रिलीफ नहीं मिला, ठीक है। तो जब वो लेट रहा था तो उसको ब्रेथलेसनेस हो रही थी। फिर वो उठ के बैठ रहा था, जब उठ के बैठा था तो ही वॉज एबल टू ब्रीथ ईजिली। वो दोबारा लेटा तो उसको फिर से ब्रेथलेसनेस होने लगी। वो दोबारा उठ के बैठ गया, ठीक है। फिर ही डिसाइडेड कि ही विल नॉट स्लीप एट नाइट, बिकॉज वो सोच रहा था कि इफ ही विल स्लीप एट नाइट देन ही वोंट बी एबल टू गेट अप नेक्स्ट मॉर्निंग। पहला पॉइंट। दार्चन इसलिए डिसअपॉइंटेड था ऑर्थर के लिए क्योंकि वहां पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, और सीतन के जाने के बाद ही वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद लोकल पीपल ऑफ दार्चन। तीसरा पॉइंट ये था कि दार्चन में वो ऑफ सीजन में पहुंच चुका था एंड देयर वर मिनिमम और नो टूरिस्ट इन दार्चन। गॉट इट बच्चे? ये 3 चीजें याद रखना, यस सर। ठीक है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज Tut's body was buried along with gilded treasure. Give reason. क्यों टट की बॉडी के कॉफिन में, जब उसकी बॉडी को कॉफिन में डाला गया तो ढेर सारा सामान रखा गया? सर क्योंकि पहले ये माना जाता था कि अगर कोई भी रॉयल पीपल की जो भी बॉडी होगी उसके साथ हम जितनी भी जो ट्रेजर्स होंगे वो हम उसके साथ बरी करेंगे, तो वो उसके साथ उसका जो आगे फ्यूचर वर्ल्ड जो भी वो उसमें मतलब जन्म लेगा तो वो सारी चीजें मतलब उसके साथ चले जाएंगी। जन्म नहीं बच्चे, आफ्टर डेथ जर्नी में उसको हेल्प करेगा। इट वॉज ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ इजिप्शियंस कि जब उनका कोई रॉयल मेंबर मरता है तो उसके सारे जो वेल्थ है, जो रिचेस हैं, वो उसके साथ रखी जाती हैं, जो उसको आफ्टर डेथ लाइफ में हेल्प करता है। आफ्टर डेथ लाइफ या आफ्टर डेथ जर्नी आप लिख सकते हैं, इसलिए उसके साथ ये सब कुछ रखा गया था।
गॉट इट? Yes. Okay, coming to the next question बच्चे, the next question says what are the earth's principal biological system? ये एलिंग प्लैनेट से लिया है। 4 बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स कौन से थे एलिंग प्लैनेट में? Sir, forest, grassland, Sir, cropland, forest, fishes, grassland, cropland. इसको एक्सप्लेन करो। Who will explain? Sorry, who will explain this? बच्चे सी, हम पहले बात करते हैं फिशरीज की, ठीक है? जो हम ह्यूमंस हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहते हैं, इसलिए हम ओवर फिशिंग कर रहे हैं। मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, याद रखना, ठीक है? हम ज़्यादा प्रोटीन के पीछे क्या कर रहे हैं? ओवर फिशिंग, overfishing. ठीक है? हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम नए घर बना रहे हैं, और Yes, sir. स्ट्रक्चर्स किसके अगेंस्ट बनाए जा रहे हैं? वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग फॉरेस्ट, यानी कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है? और हम ग्रासलैंड को और क्रॉपलैंड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वेस्टलैंड एंड डेजर्ट्स में। Ve- कैसे? ओके, नेचुरल मैन्योर क्या होता है? यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एवरीवन, तो नेचुरल मैन्योर क्या होता है? नेचुरल मैन्योर होता है काउ डंग, है ना? काउ cow डंग इज dung. वन ऑफ द नेचुरल मैन्योर, जो कि प्लांट्स में हेल्प करता है, जो फर्टिलिटी देता है सॉइल को, राइट? अब हम ह्यूमन क्या कर रहे हैं? हम उस काउ डंग को कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो इट इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। उसकी वजह से जो ये वेस्ट लैंड है, क्रॉप लैंड है, ये सॉरी, ये जो क्रॉप लैंड है, ग्रास लैंड है, ये वेस्ट लैंड और डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो रही है। गॉट इट? अब ये क्वेश्चन एक्सप्लेन Yes, करना sir. आएगा तो कर लोगे? Yes, sir. ओके, तो बच्चे कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टेकन फ्रॉम स्नैपशॉट, ठीक है? स्नैपशॉट का द एड्रेस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स, वॉर से पहले का समय और वॉर का बाद का समय। व्हाट हार्डशिप डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दिस टाइम? जो मार्का मिंको है, उसने कौन कौन से प्रॉब्लम्स इन समय में देखी? कौन बताएगा? कौन बताएगा बच्चे? ओके, हम एक जनरली वॉर की बात करते हैं। जब वॉर होता है तो क्या होता है? सर डेथ्स होती हैं। डेथ्स होती है। वेरी गुड। तो मार्का मंगो ने अपनी मदर को लूज किया वॉर के दौरान, ठीक है? और क्या होता है? सर डिस्ट्रक्शन होती है। डिस्ट्रक्शन होती है। वेरी गुड। जो जिनके ऊपर अटैक होता है दे नीड टू लीव देयर प्लेस। तो मार्गा मिंको को अपना खुद का घर छोड़कर मूव होना पड़ा बिकॉज शी वॉज इन फेयर। उसकी मदर फेयर में थे कि कहीं उनके ऊपर जर्मन्स अटैक ना कर दें, राइट? जब उनको घर छोड़ना पड़ा तो उनकी सारी बिलोंगिंग्स भी लूज हो गई, राइट? दे वर नॉट नोइंग के वेयर दे आर गोइंग actually and where they will be living after moving from their own house, right? ये एक बहुत ही पेनफुल रहा उसके लिए, राइट? और वॉर के बाद जब चीज़ें नॉर्मल हो गई, अब मार्गा मिंगो के फाइनेंशियल स्टेटस में प्रॉब्लम आया। किस तरह से आया? पहले मार्गा मिंगो जो थी अपने घर पे रहती थी और वॉर खत्म होने के बाद वो कहाँ रहती थी? रेंटेड अपार्टमेंट पे, है ना? मार्गा मिंको की मदर वॉर से पहले थी और वॉर के बाद उसकी मदर नहीं थी। मोर ओवर दे लेफ्ट बिहाइंड पीपल हु वर थॉट वर देयर। जो उनके अपने थे, जो लव वंस थे, वो भी पीछे रह गए। जो इनकी चीजें थी जो मिसेस डॉलिंग को इन्होंने दी थी वो भी वापस नहीं मिली। गॉट इट बच्चे? इस क्वेश्चन में कोई डाउट Yes, किसी को? बच्चे किसी को कोई डाउट? नो सर। Okay. We will be discussing one more question जो कि और में है। और में क्वेश्चन है What impression of Dr. Mansion do you form on the basis of story Birth? कौन बताएगा? बर्थ किस किसने पढ़ा है? यस सर पढ़ा है। तो एंड्रयू मेंशन का क्या इंप्रेशन इस स्टोरी में निकल के आता है? एंड्रयू मेंशन कैसा डॉक्टर था? क्या हिस्ट्री है उसकी इस स्टोरी में? उसकी क्या सिग्निफिकेंस है?
सर उनकी लाइफ में बहुत सी चीजें चल रही थी, पर उनकी ड्यूटी में उन्होंने अपनी ड्यूटी को ज्यादा प्रेफर किया जब उनको जरूरत थी। वेरी गुड। सर हार्ड वर्किंग थे। हार्ड वर्किंग थे, वेरी गुड। किस तरह से कह सकते हो हार्ड वर्किंग थे बच्चे? सर लाइक जब बेबी बॉर्न हुआ था तो वो स्टिल बॉर्न था, लेकिन उसने बहुत कोशिश की थी उसको वापस अराइव करने के लिए, और उसने एंड तक कोशिश की थी जब तक वो वापस जिंदा नहीं हुआ था। वेरी गुड। और ही वॉज ए गुड डिसीजन मेकर। जब वहाँ पे यस सर। मदर की भी सर हेल्थ खराब ऑप्टिमिस्ट। हो जाती है एंड ही गेट्स इनटू डिलेमा, बट ही क्विक टेक ए डिसीजन। वो स्टिल बॉर्न बेबी को मिडवाइफ को पकड़ाता है और मदर को ट्रीट करता है, मदर को एम्प्यूल देता है, मदर को सेव करता है और दोबारा वो बेबी पे आता है। ही वॉज होपफुल, राइट? होपफुल कैसे? बिकॉज मिडवाइफ तो कहती है कि Yes, शो sir. मर्सी टूवर्ड्स दिस चाइल्ड, बट ही इज होपफुल क्या है, उसको वो रिवाइव कर पाएगा। ही वॉज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मेमोरी। स्ट्रॉन्ग मेमोरी कैसे? जैसे वो बेबी को देखता है, उसके स्किन को देखता है जो कि टेंडर्ड है, उसको याद आता है कि सेम केस उसके कॉलेज टाइम पे आया था, राइट? और वो सेम प्रोसीजर फॉलो करता है। ही वॉज अ स्किल्ड डॉक्टर बिकॉज ही was having total belief on himself. He didn't give any medicine to the baby. He performed a procedure to revive the baby. सर ऑप्टिमिस्ट बोल सकते हैं Yes, इसको। he was optimistic. He was optimistic. He was very positive. Or he was a person who gave purity to his profession. इसका मतलब he was a pure professional. During before performing this surgery, when Joe was waiting for him at his place, he had fight with Christine, right? But he chose to save that baby and he kept everything about his personal life aside and he gave priority to his professional life. ठीक है बच्चे? और he was a dedicated person. किस तरह से? Because when he checked the Suzanne very first time, he said कि there is some time to perform the procedure and due to fear that he might get away, the mother of Suzanne told him to have a cup of tea. So he straightforward told her कि I won't be going anywhere, don't fret mother, I am here till I perform the surgery and get the baby safe and give it to in your hands, because Joe and Suzanne was expecting this baby after 20 years. 20 साल के बाद ये बेबी हो रहा था उनके घर। क्लियर है बच्चे? यस सर। Okay, so it's the same question now. Next question. Narrate the story of the play Mother's Day in 100 words. Mother's Day का प्ले इसका स्टोरी कौन बताएगा? बच्चा मदर्स डे वेरी इंपॉर्टेंट। सर मदर्स डे बेसिकली एक स्टोरी होती है मिसेस पियर्सन की। वो एक 40 इयर्स अराउंड की लेडी होते लेडी हैं। है बिल्कुल। सर वो एक काफ़ी हार्ड वर्किंग वुमेन है। वो अपने परिवार का हमेशा ध्यान करती है, टेक केयर करती है, बट उसके परिवार में उसका एक बेटा और एक बेटी और एक हस्बैंड होता है, लेकिन वो कभी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्त मिसेस फिजल के साथ बैठे होते हैं, और वहाँ पे इस चीज़ के रिलेटेड वो उनसे डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर मिसेस फिजल एक ऐसे मैजिशियन होती है, तो उन्होंने उनकी हेल्प करने के लिए कहा कि हम आपस में बॉडीज को स्विच कर लेते हैं। ओके जब उन्होंने बॉडीज स्विच कर ली, तो फिर जो हमारे मतलब मिसेस पियर्सन के घर में रहने लगे, और उधर उन्होंने जो तीनों उसके फैमिली मेंबर्स थे, डोरिस, उनकी डॉटर सीरियल, और साथ में फिर उसके हस्बैंड जो मिस्टर पियर्सन थे, जॉर्ज पियर्सन थे, उन सब का उन्होंने मतलब कि एक तरीके से पनिशमेंट टाइप उनके साथ रूड बिहेव किया। उनको मिसेस पियर्सन की ज़रूरत बताई कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस थी उस घर में। उन्होंने उधर कोई काम नहीं किया और सब काम उनको उनके फैमिली मेम्बर्स को कहा कि खुद करो। उन्होंने जब वो खुद सारा काम किया तो उनको पता चला कि मिसेस पियर्सन की इंपॉर्टेंस क्या थी। और फिर एट द एंड
जो हमारे मिसिस पियर्सन थे उनको ये सब अपनी फैमिली की ऐसी हालत देखी नहीं गई, और उन्होंने मिसिस फिजल को कहा कि बॉडी वापस स्विच कर लेते हैं। और फिर एट द एंड जो मतलब बॉडी स्विच करने के बाद जो मिसिस पियर्सन की फैमिली वो भी उनके साथ अब मतलब रिस्पेक्टफुली बात करने लगी थी। सपर किसने बनाया? ये सर, सपर कौन बनाता है? डिनर कौन बनाता है? सपर मींस डिनर। बच्चे इसमें मिसेस पियर्सन के बच्चों का क्या नाम है? सर सिरिल और डोरिस। साइरल एंड डोरिस है ना, ये सपर ये बनाते हैं और ये एज ए फैमिली एंड में रम्मी खेलते हैं। बट इन्होंने साइरल को, डोरिस को और जॉर्ज पियर्सन को कैसे सेट किया? सर जो साइरल था वो बाहर जाना चाहता था, मतलब कि मूवी शो देखने के लिए, पर उसने उसको मना कर दिया। और जो डोरिस थे वो एक्चुअली कहीं मीटिंग पे जा रही थी अपने फ्रेंड के साथ, बट उसने उस चीज़ से भी उसको मना कर दिया और उसकी फ्रॉक वगैरह भी प्रेस तक नहीं की थी। और जॉर्ज पियर्सन को कैसे सेट किया? सर जॉर्ज पियर्सन को कहा कि वो पार्टी में जा रहा था, उसको बेसिकली उसने मतलब कि एज अ मिसेस फेजल, जो कि उन्होंने खुद देखा कि उनका सारा मजाक उड़ाते हैं, तो वो उसके मुंह पे उसको सब कुछ बता दिया कि आपका सारा पार्टी में मजाक उड़ाते हैं, कि आपके टीथ भी अच्छे नहीं हैं। वेरी गुड। और क्या कहते हैं उसको? ओम्पी पॉम्पी पियर्सन कहते हैं। यस सर। राइट। और ये किससे कंफर्म करता है? ये साइरल से कंफर्म करता है कि सच में मुझे ओम्पी पॉम्पी पियर्सन कहते हैं। राइट। Okay, so again another question from the same chapter. This drama is really very important. ठीक है, इसलिए I'm emphasizing on this drama. Describe how Mrs. Pearson is treated by her own children and husband. Set them right वाला तो हमने कर लिया, मगर Mrs. Pearson को उसके बच्चे और उसका हस्बैंड कैसे ट्रीट करता था? Who will answer? हर्षित रहना। यस सर। बच्चे क्या आंसर है इसका? सर रिपीट करना है एक बार। क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब हाउ मिसेस पियर्सन इज ट्रीटेड बाय हर ओन चिल्ड्रन एंड हस्बैंड। सर पियर्सन मतलब कि पियर्सन ने मतलब कि कैसे उनको मतलब चेंज किया। पियर्सन नहीं, इस क्वेश्चन का मतलब है कि पियर्सन के साथ उसके अपने खुद के बच्चे और उसके हस्बैंड किस तरह से व्यवहार करते थे, किस तरह से बिहेव करते थे। सर वो उनसे सर काम वगैरह करवाते थे सर, उनका रूड बिहेवियर था सर, मतलब कि जैसा बच्चे डिमांड करते थे वो जो मिसेस पियर्सन थी वो वैसा उनको करके देती थी। और सर और see, Mrs. Annie Pearson was a very loving mother. She was very close to her family. She was doing each and every thing which is being told by George Pearson and her kids. She was working like a domestic servant right from the morning till the time she get to sleep, right? She is working 24/7, including Sundays, right, without taking an off. She was not having any personal any personal time to spend. Though she was doing a lot of things for her family, in return she was not getting any appreciation, even respect from the family members. Got it? तो सेट कैसे किया? वैसे जिस तरह से आदित्य ने बताया था कि अपनी पर्सनालिटी को स्वैप करके, और फिट्जराल्ड हेल्प पियर्सन टू सेट द फैमिली मेंबर्स राइट। ओके, तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है बच्चे? मदर्स डे में किसी को कोई दिक्कत? ओके सर। So section C is completed. Now we are moving to section B. The first question of section C is, you are the culture secretary of your school. Your school is going to organize a cultural evening. आप अपने स्कूल के क्या हो? It is given in the question itself. रोहित है क्या यहाँ पे आज? रोहित जंडियाल, are you there? रोहित, are you there बच्चे? No, he is not there. Okay. You are the culture secretary of your school. ठीक है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए कल्चरल इवनिंग इन द स्कूल टू कलेक्ट फंड। ठीक है, आप अपने स्कूल के कल्चर सेक्रेटरी हो और आप एक कल्चर इवनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? आप फंड रेज करना चाहते हो। किसके लिए? स्लम चिल्ड्रन के लिए। तो यहाँ पे बताओ बच्चे, स्लम चिल्ड्रन क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय स्लम चिल्ड्रन?
जो बच्चे झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं उनको स्लम चिल्ड्रन कहते हैं। ठीक है बच्चे? ओके। यस सर। प्रिपेयर ए पोस्टर। क्वेश्चन इटसेल्फ सेज कि आपको पोस्टर बनाना है जिसको आप डिस्प्ले करेंगे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। जो एंट्री है इस इवनिंग में वो टिकट से रहेगी जो कि नॉमिनल है। नॉमिनल मतलब कि जो सस्ती है। ठीक है? तो बच्चे जब भी हम पोस्टर बनाते हैं तो आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स आपको पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ पेन से बनाना है और स्केल से बनाना है। यूज ऑफ पेंसिल इज प्रोहिबिटेड इन माई पेपर। इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश एज इन पेपर यू आर नॉट अलाउड टू यूज पेंसिल इन इट, राइट? तो कल्चर सोसाइटी, अगर मैं इफ आई टेल यू अबाउट पोस्टर मेकिंग, सी पोस्टर मेकिंग में 3-4 बातें हमेशा याद रखना। पोस्टर मेकिंग में लैंग्वेज हैज टू बी वेरी सिंपल। यू आर नॉट अलाउड टू यूज एब्रीवेशंस, नो एब्रीवेशंस। ठीक है? यू आर नॉट अलाउड टू राइट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। डिस्क्रिप्टिव मतलब आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते, आप बुलेट्स का यूज कर सकते हैं, आप पॉइंट्स में अपना बात रखेंगे। इट हैज टू बी क्रिएटिव, राइट? और यहाँ पे क्लिप आर्ट आती है, राइट? तो कल्चर सेक्रेटरी कौन से स्कूल का है? दीवानी स्कूल, वॉट एवर, ऑर्गेनाइजिंग ए कल्चर इवनिंग। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये फंड इकट्ठा करना चाहते हैं स्लम के लिए, स्लम चिल्ड्रंस के लिए। ये कब हो रहा है? 22 को हो रहा है। यहाँ पे ऑनरेबल गेस्ट कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। ये कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अट्रैक्शन क्या रहेगा इस प्रोग्राम का? खास क्या है? एक तो कल्चर प्रोग्राम रहेगा स्कूल के बच्चों के द्वारा, एक डोगरी डांस होगा, डोगरी डांस, डोगरी पोइम होगी, एरोबिक्स होंगे। और ये कहाँ पे हो रहा है? स्कूल ऑर्गेनाइज कहाँ कर रहा है? ये अभिनव थिएटर में ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है? इसके टिकट्स भी हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया यू हैव टू कीप नॉमिनल टिकट्स। अडल्ट की 20 रुपए, बच्चों की 10 रुपए। नाउ योर नेम अलॉन्ग विद द डेजिग्नेशन। पोस्टर डजंट हैव ए सेट फॉर्मेट, इट इज अप टू यू हाउ यू मेक इट क्रिएटिव। गॉट इट बच्चे? समझ में आ गया? यस सर। ओके। इसके और का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और का क्वेश्चन है योर यंगर सिस्टर इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आपकी जो छोटी बहन है वो 10th क्लास में पढ़ रही है, गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है? शी ब्रोक हर फुट एक्सीडेंटली। उसका पाँव टूट गया गलती से। ठीक है? हो सकता है कि गिर गई हो या कुछ भी हुआ हो। एंड हेंस शी कैन नॉट गो टू स्कूल एटलीस्ट फॉर ए मंथ। और वो 1 महीने तक स्कूल में नहीं जा सकती। आपको एक एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करना है लोकल न्यूज़पेपर के लिए फॉर ए टीचर फॉर टीचिंग साइंस एंड मैथ टू योर सिस्टर एट होम। आप लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे कि आपको एक टीचर चाहिए, एक होम ट्यूटर चाहिए जो आपके घर पे आके आपकी बहन को साइंस और मैथ पढ़ा सके। तो जब हमें कोई चाहिए होता है तो उसमें आप सिचुएशन वेकेंट भी लिख सकते हैं। अगर हमें नौकरी चाहिए तो उसे आप सिचुएशन वांटेड लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे आप वांटेड मैथ और साइंस होम ट्यूटर भी हेडिंग में दे सकते हैं। एडवर्टीजमेंट का एक पॉइंट है बच्चे, इट हैज टू बी देयर इन दी बॉक्स ओनली। ठीक है? तो इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे? वांटेड, हाईली वांटेड या रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, बोथ आर राइट। ठीक है? रिक्वायर्ड हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पीजीटी हु कैन टीच साइंस एंड मैथ्स टू ए गर्ल स्टडिंग इन क्लास 10th। ट्यूशन फी इज नेगोशिएबल फॉर राइट कैंडिडेट, डिजर्विंग की जगह राइट कैंडिडेट भी लिख सकते हैं। अप्लाई विद डिटेल बायोडाटा विद इन अ वीक टू मिस्टर ABC। वहाँ पे आपने नीचे अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट और ईमेल देना। बच्चे एड्रेस दो या ना दो मगर अपना ईमेल और कॉन्टैक्ट जरूर दो। गॉट इट? यस सर। समझ में आ गया सबको? ओके। यस सर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। कल के पेपर में एक लेटर था, यू हैव टू राइट टू द कमिश्नर ऑफ रामबन, है ना, कि आपके एरिया में चोरी चकारी बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्चे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट दे हैव डन, दे हैव रिटन थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन। बच्चे आप एडिटर को थोड़ी ना लिख रहे हो। जब आप एडिटर को लिखोगे तो ये लाइन यूज करोगे, जब आप कमिश्नर को लिखोगे तो ये लाइन यूज नहीं करोगे। आप डायरेक्टर को लिखोगे स्कूल एजुकेशन को, ये लाइन नहीं यूज करोगे। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर ये सिर्फ लाइन यूज होगी व्हेन यू आर राइटिंग टू द एडिटर। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। जब डेजिग्नेशंस आती हैं, ठीक है, यहाँ पे
डेजिग्नेशन जब आती हैं, अगर ये मैं प्रिंसिपल लिख रहा होता डायरेक्टर को तो ऊपर दी प्रिंसिपल लिखता, ठीक है, सेंडर एड्रेस के ऊपर। अब इमरान अगर पुलिस कमिश्नर को लिख रहा है तो सेंडर एड्रेस के ऊपर इमरान क्यों लिख रहे हो बेटा? सेंडर एड्रेस के ऊपर इमरान नहीं लिखना है, डेजिग्नेशन आएगी, नाम नहीं आएगा, नाम सिग्नेचर में आएगा। क्लियर है? यस सर। यस ओके सर। ओके, सो हमने ये लेटर लिखना है एडिटर ऑफ ए लीडिंग न्यूज़पेपर। क्यों लिखना है? ड्राइंग द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट टू दिस प्रॉब्लम एंड रिक्वेस्टिंग फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ द रोड। कितना ट्रैफिक है, ट्रैफिक को किस तरह से हम इंप्रूव कर सकते हैं और अपने रोड के हालात जो हैं उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस, ठीक है, लीव अ लाइन, डेट, डेट के बाद लीव अ लाइन, किसको लिखना है? एडिटर को। एडिटर की न्यूज़पेपर का नाम दिया है, नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ लीडिंग न्यूज़पेपर दिया है, तो कोई भी नाम लिख लो, स्टेट टाइम्स लिख लो, टाइम्स ऑफ जम्मू लिख लो, जम्मू, ठीक है। बट यहाँ पे वन थिंग इज मिसिंग, यहाँ पे जम्मू के बाद पिन कोड आएगा, राइट। सब्जेक्ट लिखो मेंटेनेंस ऑफ रोड। यहाँ पे एक और गलती है, डियर नहीं आएगा, ये मैंने जानबूझ के रखा है बिकॉज नंबर ऑफ यू आर मेकिंग मिस्टेक। डियर बच्चे सिर्फ पर्सनल लेटर में ही आएगा, यहाँ पे यहाँ तो सर आएगा, यहाँ आप इसे रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हो। यू आर नॉट अलाउड टू राइट डियर ओवर हेयर। You are doing this mistake, इसलिए I want to get it in front of you। डियर सिर्फ पर्सनल लेटर्स में यूज होगा, ऑफिशियल लेटर में सिर्फ सर यूज करें या तो रिस्पेक्टेड सर यूज करें। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं रिस्पेक्टेड सर। बच्चे दिस इज रॉन्ग। ये क्या है? RWS, इसका मतलब रिस्पेक्टेड सर होता है, कहाँ पे लिखा है? सो प्लीज स्टॉप डूइंग दीज सिली मिस्टेक, यू विल लूज योर मार्क्स, ठीक है। आप इसके बाद इसमें बॉडी लिखेंगे, बॉडी लिखने के बाद लीव अ लाइन, आप थैंक यू लिखेंगे, थैंक यू के बाद यूअर्स ट्रूली एंड नेम। XYZ भी नहीं लिखेंगे, बहुत सारे बच्चे XYZ लिख रहे हैं, यहाँ पे सिंपल लिखो जॉन। गॉट इट? बच्चे क्लियर है सबको? यस सर। डियर आएगा, किस में आएगा बच्चे? डियर पर्सनल लेटर। वेरी गुड। XYZ नहीं आएगा। अगर आपका नाम दिया है, एनी नेम इज गिवन, यूज दैट इंफॉर्मेशन। अगर नेम इज नॉट गिवन, यूज है इमेजिनरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ओके सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे हमको जो परसों वाला पेपर था ना सर, उसमें आया था XYZ स्कूल आया था, तो सर वहां पे हमको मेंशन XYZ स्कूल का नाम होता है या फिर हम किसी भी स्कूल का नाम लिखेंगे? बच्चे दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड बाय यू हर्षित। जब क्वेश्चन में XYZ दिया ना, तो एज पर हमारा रूल क्या कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है हमने वही इन्फॉर्मेशन लिखनी है। यस सर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ओनली स्कूल होता तो आप XYZ नहीं लिखते, आप लिखते JPN पब्लिक स्कूल या XYZ पब्लिक स्कूल। पब्लिक जरूर लगाओ, या हाई सेकेंडरी स्कूल एज पर द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में ABP होता तो आप ABP स्कूल लिखते हैं। हमारा रूल ये कहता है कि हमने पहले क्वेश्चन को ही स्कैन करना है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को फेच करना है और एज पर द क्वेश्चन लिखना है। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो इमेजिनरी इंफॉर्मेशन देनी है, बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू गिव आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन। गॉट इट बच्चे? हर्षित बच्चे क्लियर है? और ये काफी बच्चों को ये क्वेश्चन होगा, एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय हर्षित। हर्षित, आई रियली अप्रिशिएट यू बच्चे। ओके, थैंक यू सर। हर्षित, आपने एक क्वेश्चन पूछा था आज, उसका आंसर मैं इस क्वेश्चन में दूंगा। सो और में इसके साथ एक को लेटर है, लेटर में कहा गया है यू आर द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल एज डिजायर्ड एंड ऑर्डर्ड बाय द प्रिंसिपल। आप अपने स्कूल के लाइब्रेरियन हो, जैसा कि प्रिंसिपल ने आपको ऑर्डर किया है कि आपको एक लेटर लिखना है मैसर यूनिक बुक शॉप को, ठीक है, जिसे आप ऑर्डर करेंगे सप्लाई ऑफ इंग्लिश बुक, ठीक है, बुक्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री विच हैव बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय बोस फॉर स्कूल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे XYZ मैंने यूज किया है और यहाँ पे पब्लिक स्कूल लिखा है, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज की माइन्यूट सी गलती है, आप एज ए लाइब्रेरियन लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे लाइब्रेरियन लिखेंगे। लाइब्रेरियन डेजिग्नेशन है, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस कठुआ का पिन कोड आ जाएगा, कोई भी लिख लीजिए, इमेजिनरी, जरूरी नहीं है कि उसका एप्रोप्रिएट पिन कोड होना चाहिए। लीव अ लाइन,
डेट, लेवल लाइन, आप किसको लिख रहे हैं? दी सेल्स मैनेजर। ओके, दिस थिंग आई रियली वांट टू डिस्कस विद यू। अब बच्चे क्या कर रहे हैं? दी सेल्स मैनेजर के साथ ही कंपनी का नाम लिख रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। आप कैसे लिखेंगे? द सेल्स मैनेजर, मेसर्स यूनिक बुक शॉप। ये कहां पे है? दिस इज इन जम्मू फॉर एग्जांपल, जम्मू, और जम्मू के साथ पिन कोड आएगा 180001। डेजिग्नेशन ऊपर आएगी, एड्रेस नीचे आएगा। इज इट क्लियर बच्चे? सर एक क्वेश्चन हो रहा है। वेरी गुड बच्चे, पूछो। सर जैसे ये मतलब कि नाम है, कभी कंपनी का नाम, मतलब सर जैसे जो सुबह वाला क्वेश्चन था वहां पे आया था ना आगे कि प्राइवेट लिमिटेड, सर वो भी साथ ही लिखना होता है ना? बच्चे अगेन मेरा रिप्लाई वही है, जो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है वो हमें एज इट इज लिखना है। ओके सर। ठीक है बच्चे? यस सर। ओके, तो यहाँ पे आप जब रिसीवर एड्रेस लिखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आफ्टर लीविंग अ लाइन, ऑर्डर ऑफ बुक हो गया, ठीक है। और हर्षित ने पूछा था कि सर हम ऑर्डर नंबर कब डालते हैं? ऑर्डर नंबर जब हम तब डालते हैं जब हम ऑर्डर को कैंसिल कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ ऑर्डर रिटर्न, आपको रिटर्न के लेटर नहीं है, आपको 3 लेटर है, एक इंक्वायरी की, बिजनेस लेटर की बात करें, एक प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक कैंसिलिंग ऑफ ऑर्डर। अब बच्चे जब हम ऑर्डर को प्लेस करेंगे, है ना, हमें ऑर्डर नंबर मिलेगा। अब हमने ऑर्डर को कैंसिल करना है। फॉर एग्जांपल हम अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, तो जब हम वहां पे पेमेंट करते हैं तो हमारा आता है ना शॉप ऑर्डर नंबर आता है ना, इनवॉइस नंबर। यस सर, ऑर्डर आईडी। अब हमें ऑर्डर कैंसिल करना है, तो हम ऑर्डर आईडी के थ्रू ही तो करेंगे उसको कैंसिल। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं जो हमने अपने माइंड में रखनी है बिजनेस लेटर फ्रेम करने के टाइम। ठीक है बच्चे? तो यहाँ पे आ जाएगा, सर मैडम आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी। आप जब भी ऑर्डरिंग लिस्ट देंगे, आप हमेशा अपनी ऑर्डरिंग लिस्ट जो है वो टैबुलर फॉर्म में देंगे, इस तरह से टेबल में देंगे, ठीक है। जब आप एक लेटर लिखते हैं जिसमें आप गुड्स प्लेस कर रहे हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है? सबसे पहली बात आपकी ऑर्डरिंग लिस्ट, दूसरी मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, तीसरी अगर ऑर्डर फॉल्टी हुआ, ठीक है, तो आप बिना पेमेंट किए ऑर्डर को वापस कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या है? सीधा लिखो कैश ऑन डिलीवरी, राइट। उसको आप बोलो अप्लाई डिस्काउंट, ठीक है, एज वी आर परचेजिंग आइटम्स विद यू फ्रॉम लास्ट 10 years, ठीक है। और उसके बाद ये भी लिख दो, इफ द ऑर्डर विल फाउंड फॉल्टी और डैमेज, देन ऑर्डर विल बी returned at that particular moment without making any payment against it। ठीक है बच्चे? यहां पे खत्म करके थैंक यू, लीव अ लाइन, योर फेथफुली AK लाइब्रेरियन। बात खत्म हो गई। इज इट क्लियर बच्चे? बिजनेस लेटर में कोई प्रॉब्लम है? सुधांशु? नो सर। नो सर। मोहम्मद रजाक? यस सर। प्रॉब्लम है बच्चे कोई? नो सर। आदित्य? किसी को भी होगा तो डू। नो सर। ओके बच्चे, आपके सिलेबस में 4 मार्क्स का ईमेल है जो कि पर्सनल ईमेल है और वो आएगा। ईमेल में आपने, ओके आई वाज चेकिंग योर पेपर, आपने क्या किया है, ये जो लाइंस है ना, ये वाली लाइंस ये आपने ड्रॉ नहीं की है, राइट। आपका डेट का फॉर्मेट गलत आ रहा है बच्चे। मैंने आपको कहा था कि डेट का फॉर्मेट जो है इस तरह से नहीं लिखना है। किस तरह से आएगा? 15 मार्च 2024। कुछ बच्चे इस तरह से लिख रहे हैं 15 मार्च 2024। दिस फॉर्मेट इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस फॉर्मेट इज ऑल्सो रॉन्ग। इस तरह से लिखना आपने। सेक्शन बी में आपने डेट का फॉर्मेट, हर फॉर्मेट जहां पे डेट यूज होती है यही फॉर्मेट यूज करना है डेट में। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, इसका सीक्वेंस खराब नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस फॉर्मूला है FDTCS, ये मैंने आपको करवाया है, ठीक है। जब भी आप पर्सनल ईमेल लिखते हैं तो आप डियर यूज करते हैं, आपने उसका नाम लिखना है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, और एंड में यूर लविंग फ्रेंड। अगर आपको लविंग फ्रेंड भूल जाता है या आप अपनी आंट को लिख रहे हैं तो विद रिगार्ड्स ही यूज करो। आप फ्रेंड के लिए विद रिगार्ड्स यूज करेंगे, उससे भी कोई गलती नहीं करेगा। इज इट क्लियर? मतलब लिख सकते हैं। यस सर। आप योर लविंग फ्रेंड हटा दो, विद रिगार्ड्स यूज करो, क्योंकि अगर ईमेल आ गया, यू आर राइटिंग टू योर अंकल,
यू विल गेट कंफ्यूज। वहां पे क्या लिखोगे? यू लविंग? नो सर, विद रिगार्ड्स। आप विद रिगार्ड्स ही लिखो, चाहे आप फ्रेंड को लिख रहे हो, चाहे आप अंकल को लिख रहे हो, चाहे आप आंटी को लिख रहे हो, ठीक है? और Yes, पर्सनल sir. ईमेल है तो डियर ही आएगा। गॉट इट बच्चे? यस सर। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अबाउट इंसिडेंट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। वुमेन के अगेंस्ट कौन कौन से क्राइम होते हैं? एज ए स्टूडेंट एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, आप अपने स्कूल के स्कूल मैगजीन के स्टूडेंट एडिटर हो, आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है? हम किस तरह से इस इवल को खत्म कर सकते हैं? हाउ कैन यूथ, यानी हम यूथ जो यंग लोग हैं, वो किस तरह से फाइट कर सकते हैं इस इवल के अगेंस्ट? तो इसका फॉर्मेट क्या होता है बच्चे आर्टिकल का? यहाँ पे क्या गलती है? सर हेडिंग। वेरी गुड बच्चे। हेडिंग। हेडिंग में क्या आएगा? हेडिंग में डाल दो ये सर हेडिंग। क्राइम अगेंस्ट वुमेन। सर हेडिंग। उसके बाद हेडिंग के बाद सर Name. बाय लाइन। बाय लाइन। सर बाय लाइन। यहाँ पे by. नाम दिया है कहीं पे? सर बाय लाइन। वेरी गुड। यहाँ पे नाम दिया है कहीं पे? नो सर। तो इमेजिनरी No, नाम आ गया नो नो सर। सर। जो, ठीक है? बट यहाँ पे डेजिग्नेशन दी है यस सर, यस सर। है ना? स्टूडेंट। जो कॉमा एडिट। एडिटर, राइट? एडिटर स्कूल मैगजीन, वो स्टार्ट कर दो। अब बताओ कि एक बहुत ही जनरल टॉपिक है बच्चे, हम बात करें अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन की, तो वुमेन्स के अगेंस्ट कौन कौन से क्राइम होते हैं? कौन बताएगा? सर सर, सेक्सुअल dowry हो गया। हरासमेंट। सेक्सुअल असॉल्ट्स होते सेक्सुअल हैं, हरासमेंट। हरासमेंट्स होती हैं, वेरी गुड। और सर रेप हो गया। रेप हो गए, और डोमेस्टिक वायलेंस, सर मारते वो ठीक है? उसके बाद क्या होता है? चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज, वेरी गुड। हाँ। और वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू स्टडी, दे आर नॉट कंसीडर्ड सर, इक्वल टू मेन। कहीं सर कहीं काम करवाए जाते हैं उनसे। हाँ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कहीं कहीं आपको पता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन ट्रैफिकिंग? यस सर। सर किडनैप। किडनैपिंग, prostitution? ट्रैफिकिंग होता है Supply. मानव तस्करी। ह्यूमंस को पैसे देके खरीदा जाता है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज prostitution? this is prostitution, this is human trafficking is happening in Haryana side, okay, because men ratio is higher than women, okay? और इसमें क्या Yes, होता है? sir. गर्ल, इसको what they call in English, I'm not getting the right word, गर्ल्स को मार देते हैं जैसे वो पैदा होते हैं। सर तो हम एज ए यूथ इसके अगेंस्ट हम कैसे लड़ सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं? वाइफ बीटिंग, कहीं कहीं पे तो सर इन्फेंटिसाइड। सर इन्फेंटिसाइड। यस यस, इन्फेंटिसाइड। कहीं ना कहीं वाइफ बीटिंग हो रही है, ठीक है? और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? लोगों को अवेयर करके, रेप की यस सर। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट गवर्नमेंट लॉज अगर निकाले तो, ठीक है? फास्ट ट्रायल चले तो, ठीक है? उसके बाद एजुकेशन दी जाए। एजुकेशन दी जाए, गर्ल्स स्कूल सर, खोले जाएं, गर्ल्स एजुकेशन फ्री की जाए, राइट? सर जॉब वगैरह मिले। गर्ल्स को कुछ रिजर्वेशंस रखी जाएं गर्ल्स के लिए, सो दैट दे कैन, कंपनी में इतने इतने मिनिमम क्वांटिटी में गर्ल्स होनी चाहिए, राइट? और गांव में Yes, sir. लिटरेसी प्रोवाइड करके, अवेयरनेस देके, एजुकेटेड करके, जो आपके सेक्सुअल डिटर्मिनेशन टेस्ट होते हैं, राइट? सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन करके, अगर कोई करता है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेके, तो ये सारी बातें आप इस आर्टिकल में लिख सकते हो। गेटिंग इट? यस सर। यस सर। ओके बच्चे, देयर इज अ क्वेश्चन कि यू आर द प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ एबीसी न्यूज़पेपर। आप कौन हो? प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट। प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट का क्या मतलब होता है? न्यूज रिपोर्टर, ठीक है? आप न्यूज रिपोर्टर हो एबीसी न्यूज़पेपर, एबीसी न्यूज वर्ल्ड के, ठीक है? एबीसी। यस, एबीसी न्यूज वर्ल्ड के। देयर वाज ए इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट इन योर लोकेलिटी। आपके लोकेलिटी में चोरी होगी, वेयर मच ऑफ द कैश एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स वर स्टोलन, जहां से बहुत सारा सोना और
और कैश जो था वो निकल गया, आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो बच्चे सबसे पहले यू विल बी आंसरिंग, ये मैंने आपके लिए रखा है फॉर्मेट वाला पार्ट, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सी रिपोर्ट है, मैंने बहुत बारी करवाई है आप सबको। सर न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। वेरी गुड। न्यूज़पेपर का फॉर्मेट मैंने आपके लिए रखा है। न्यूज़पेपर का फॉर्मेट क्या होता है सर? हेडिंग फिर हेडिंग क्या होगी? हेडिंग लेफ्ट क्वेश्चन साइड पढ़ के पे मुझे हेडिंग डेट। बताओ, मुझे बताओ हेडिंग क्या होगी। सर सिंपल हेडिंग बनाओ ना बच्चे, इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट। सर, क्वेश्चन theft, नहीं आंसर है, इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट। ये मैं आपको बता रहा हूँ आप किस Yes, तरह sir. से अपना आंसर कर सकते हो फ्रेम क्वेश्चन से, ठीक है। ये आपकी हेडिंग होगी, कहाँ पे आएगी? सेंटर में, ठीक है। लीव अ लाइन। अब यस सर, बायलाइन बायलाइन कहाँ पे आएगी? लेफ्ट बायलाइन कहाँ? बायलाइन राइट साइड में, राइट साइड पे आएगी। राइट साइड में सर। राइट ओके, यहाँ पे आपको नाम दिया है, सर नाम नहीं दिए हैं सर, एडिटर आएगा। नहीं, जब नाम नहीं दिया होता तो क्या होता है? इमेजिनरी Editor. नेम आएगा। सर इमेजिनरी लिख दो जो, ठीक है। जॉन बाय आनंद लिख दो, बाय जो लिख दो। यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन दिया है सर। यस सर। क्या है डेजिग्नेशन? यस सर प्रेस कॉरेस्पोंडेंट। सर प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट यहाँ पे लिख दो। प्रेस क्या बताया आप कौन से न्यूज़पेपर में प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट हो? सर ABC न्यूज़। ये आ जाएगा यहाँ पे ABC न्यूज़ वर्ल्ड। बाय के बिल्कुल सामने आ जाएगा। ये थेफ्ट कहाँ पे हुआ है? जम्मू में। सर अगर ABC नहीं आएगा तो हम स्टाफ रिपोर्टर लिख देंगे। नहीं बच्चे, क्यों लिखेंगे? सर, स्टाफ रिपोर्टर तो हमने लिख दिया। प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब ही तो न्यूज़पेपर रिपोर्टर या स्टाफ रिपोर्टर होता है, वो तो हमने लिख दिया। अगर न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया होगा तो स्टेट टाइम्स लिख दो, जम्मू टाइम्स लिख दो, इमेजिनरी न्यूज़पेपर का नाम लिख दो। मगर अगर क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नाम दिया है, ग्रेटर कश्मीर दिया या ABC न्यूज़पेपर वर्ल्ड दिया है, तो वो एज इट इज आएगा डेजिग्नेशन के साथ, जैसे यहाँ पे लिखा हमने, ठीक है बच्चे। जम्मू के बाद डेट आ गई, डेट 2 मार्च 2023। रिपोर्ट कौन से टेंस में होती है? सर व्हाट वाई पास्ट में आएगी। पास्ट में। बच्चे कभी भी न्यूज़पेपर आज के दिन का नहीं छपता है। अब कल जो न्यूज़पेपर आएगा वो आज का छपेगा, यानी एक दिन पहले का न्यूज़पेपर छपता है, इसलिए सारी रिपोर्टिंग जो होती है न्यूज़पेपर में वो पास्ट टेंस में की जाती है। गॉट इट? यस सर। और बहुत अच्छा बोला। फर्स्ट पैराग्राफ हम किस तरह से फ्रेम करेंगे? कौन 5W रूल बता रहा था? सर मैं। वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य कुमार। 5W रूल क्या कहता है बच्चे? सर व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु। वेरी गुड। और इसकी कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? प्रिवेंटिव मेजर्स। क्या करना चाहिए? पेट्रोलिंग लगानी चाहिए, नाका लगाना चाहिए, कैमरा, चौकीदार रखना चाहिए, कैमरा लगाना चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। किसने बोला कैमरा लगाना चाहिए? चेक पोस्ट लगानी चाहिए। सर आदित्य वेरी गुड, वेरी नाइस। हर्षित वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी कि यू आर बिकमिंग एक्टिव, राइट। तो इस तरह से हम इसको 250 वर्ड्स या 250 वर्ड्स का लिख के इसको कंप्लीट करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। बच्चे अगेन आई वाज चेकिंग योर पेपर एंड आई वाज सो डिसहार्टेड। यू आर हैविंग वन प्रॉब्लम। मैंने आपको कहा था कि जब आप एडिटिंग करेंगे, एडिटिंग में क्या करेंगे? इसको रीराइट करेंगे। रीराइट करने के बाद जो सही वर्ड है उसको रिप्लेस करेंगे, उसको रॉन्ग वर्ड को रिप्लेस करेंगे सही वर्ड के साथ, राइट। मगर दैट इज नॉट हैपनिंग। इसको रीराइट किया, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, करके बताऊंगा। जैसे यहाँ पे सी है तो सी का राइट वर्ड क्या है? सी नहीं आएगा यहाँ पे आएगा 100। इसको रिप्लेस करेंगे, रीराइट करेंगे पूरा पैराग्राफ। अगर आप रीराइट नहीं करेंगे, आप इस फॉर्म में लिख रहे हैं, दिस इज द रॉन्ग वे टू राइट द आंसर, ठीक है। यू हैव टू रीराइट द पैराग्राफ बच्चे, रीराइट, ठीक है। रिप्लेसिंग इनकरेक्ट वर्ड्स विद करेक्ट वर्ड्स, और उसको अंडरलाइन करेंगे। अब यहां पे सोहन की क्या गलती है? एस स्मॉल लेटर में है, ये यस ऐसे आएगा, ठीक है। कम इन प्लीज में क्या गलती है? सर इनटू कॉमास, बिकॉज इट्स ए डायलॉग, इसको रिप्लेस करेंगे। गॉट इट? सर सोहन में ऐसे एस कैपिटल ही लग रहा है ना? नहीं, वो स्मॉल है, ठीक है।
ओके सर। ओके, तो बच्चे गलतियां पता लगी कि सॉरी पता चला कि आपको एडिटिंग किस किस वे में आपको रिप्रेजेंट करना है, किस वे में आपको आंसर सर करना है। कमेंट प्लीज में सी कैपिटल में आएगा ना? बच्चे सी स्मॉल में ही आएगा, कैपिटल में क्यों आएगा? बस इट्स अ डायलॉग, इट्स अ डायरेक्ट स्पीच, इसलिए वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा। ये ओके सर। टाइप्ड है तो इसमें आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। यस सर। ठीक है, अब ऑफर हिम मेड है, पास्ट टेंस है, तो जहां पे पास्ट है तो ऑफर्ड आएगा, राइट? यस सर। गॉट इट? बट आई डोंट वांट यू टू write in this format. The right format of answering this question is you have to rewrite the paragraph, replace the incorrect word with the correct words and underline them. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। जो नेक्स्ट पेपर है वो इस आज का पेपर इसी तरह से किया या ऐसे किया, एक साइड पे इनकरेक्ट और एक साइड पे नो सर, जैसे रीराइट किया पैराग्राफ। पक्का? यस सर। यस। ओके, और ऐसे ही करना है, ठीक है? ओके, मूविंग टू ये सेक्शन ए। सेक्शन ए में बच्चे मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती। अगेन नोट मेकिंग में फ्यू स्टूडेंट्स व्हाट दे आर डूइंग इज, आपके लिए मैंने फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया है। अगर आप सब हेडिंग 1 लिखते हो तो सब पॉइंट आप ए बी सी डी लिख सकते हो, अगर आपको नंबरिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है? बट आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने सब हेडिंग लिखी टूरिज्म, ठीक है, आप उसके बाद डॉट्स लिख रहे हो, दिस इज रॉन्ग। आप क्या कर रहे हो, अगर आपने सब हेडिंग लिखी है ये, तो आपके सब पॉइंट आ रहे हैं 1 2 3, दिस इज टोटली रॉन्ग। यहां तो सिंपल लिखो बच्चे 1 टूरिज्म, पॉइंट शुरू करो, सब पॉइंट 1 1.1 1.2 1.3 1.4, ये सबसे इजी है। अगर इससे भी इजी करना है तो मैंने आपके लिए एक सोल्यूशन निकाला है आज शीट्स देख के, कि अगर आपने 1 लिखा है टूरिज्म तो नीचे अल्फाबेट शुरू कर दो ABCD, फिर 2 डाल दो हेडिंग, उसके सब पॉइंट डाल दो ABCD, फिर 3 डालो सब हेडिंग और उसके सब पॉइंट डालो ABCD। गॉट इट? यस सर। एक और ब्लंडर आप क्या कर रहे हो, आप अंडरलाइन नहीं कर रहे हो। एब्रीवेशन को बच्चे अंडरलाइन इस तरह से करना है, और एब्रीवेशन वही आप यूज करोगे जो आपने एब्रीवेशन बॉक्स में दी होगी। इज इट क्लियर? यस। और मैंने मार्क्स काटे हैं आपके। एक बहुत बड़ा ब्लंडर फिर से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये पेपर में मैंने आपको एरर्स दिखाने के लिए बनाया ताकि हम 6 अप्रैल को गलती नहीं करें। हम नोट मेकिंग में तो टाइटल दे रहे हैं, मगर हम समरी में टाइटल नहीं दे रहे बच्चे। यू हैव टू गिव टाइटल इन समरी ऑल्सो, बट आपका समरी का टाइटल और नोट मेकिंग का टाइटल जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। गेटिंग इट? यस। मतलब समझा नहीं मैं बच्चे। ओके, आपने नोट मेकिंग में टाइटल दिया प्रोस्पेक्टस ऑफ टूरिज्म, ठीक है? यस सर। समरी में यू कांट गिव द सेम टाइटल प्रोस्पेक्टस ऑफ टूरिज्म। यहां पे आपका टाइटल जो है, इफ यू कैन राइट टूरिज्म वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री। नोट मेकिंग का टाइटल और समरी का टाइटल जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, और दोनों में टाइटल देना है। गॉट इट? यस सर। यस। बच्चे अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम अनसीन पैसेजेस में। मेजोरिटी ऑफ यू मेडिकल क्लास में ये मैंने प्रॉब्लम देखी है बच्चे, यू आर नॉट राइटिंग द क्वेश्चन। मैंने सबका क्रॉस कर दिया। दिस इज नॉट माई गाइडलाइन, दिस इज द गाइडलाइन विच इज बीइंग गिवन बाय JK बोर्ड। आप ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे, उसका आंसर नीचे लिखेंगे। आप सिर्फ आंसर लिख रहे हैं, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। बच्चे इसका क्वेश्चन तो लिखो, फिर आंसर, फिर क्वेश्चन 2 लिखो, फिर इसका आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर 3 लिखो और इसका आंसर। आप इजी 10 मार्क्स अपने लूज कर दोगे। अनसीन पैसेजेस इजी होते हैं, पैसेज से ये आंसर निकलते हैं बच्चे।
मगर पैटर्न सही ना होने के कारण इवैल्यूएटर विल गिव यू 0 मार्क्स आउट ऑफ 10, और आपके आंसर सही भी होंगे तब भी आपको 0 मिलेगा। छोटी सी गलती कि हमने क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं। आर यू गेटिंग इट? यस 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 सर। तो ये गलती होगी आगे से फिर से? नो सर। नो सर। It shouldn't happen, right? Any other point you want to discuss with me? Is everything answering pattern is clear to you? अब मैंने आपके सामने खुद करके बताया, क्योंकि कल मैंने आपको आंसर शो किए थे। I went through the sheets, तो मुझे लगा नहीं मैं एरर करूंगा और आपसे खुद करवाऊंगा। तो you did it yourself in today's session, isn't it? Yes Yes sir। I don't expect you to make same mistakes again. ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है बच्चे, वी आर क्लोजिंग। आई विश यू लक। थोड़े से दिन एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बच्चे पूछो ना। सर क्वेश्चन नंबर 8 है ना एक्सट्रैक्ट पॉइंट का, उसमें से सर उसका जो थर्ड पार्ट है उसका एक शॉर्ट आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो? क्लास एक्चुअली लेट हमें लिंक आया था इसलिए पता नहीं है। कौन सा वाला बच्चे? सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट फील हैविंग वर्चुअली लॉस्ट हर चाइल्डहुड? के उसको कब लगता है कि उसे अपना चाइल्डहुड कब यस सर। बच्चे सर ये अब हमें मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि ये अब हमें जो हमें एक्सट्रैक्ट दिया उसके अकॉर्डिंग बताना है, जो हमें जो पोएम के रिलेटेड पता है? बच्चे बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर आप देंगे तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि वो 12 साल का हुआ तब वो अपने चाइल्डहुड को लूज कर गया। यस सर। राइट? एज पर द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पोम यू हैव टू राइट दिस आंसर। यस सर। ठीक है? व्हेन यस सर। he got the consciousness of her individuality, जब उसे पता लगा कि वो एक अलग इंडिविजुअल है। ठीक है? और जनरली बात करें तो कब पता लगता है कि हम अलग इंडिविजुअल हैं? सर मैच्योर हो years के बाद जब हम मैच्योर हो जाते हैं। Teenage हमारी में। टीनेज कब से शुरू होती है? 13 से। तभी 13 टीन यूज होता है। ठीक है? और बीच वाला जो होता है वो 12 होता है। इसलिए यहाँ पे पोइट ने कहा है कि जब 12 साल का वो हुआ तो जब उसके अंदर इंडिविजुअलिटी आई, जब उसे लगा कि वो एक अलग इंडिविजुअल है, तब उसको एहसास हुआ कि ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। गॉट इट बच्चे? यस सर, थैंक यू सर। यू वेलकम बच्चे। बच्चे और कुछ? नो सर। ओके, सो वी आर क्लोजिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सर ये पीडीएफ भेज सकते हो आप? बिल्कुल भेज दूंगा बच्चे। थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर। नो सर। इट विल बी थैंक यू डन। ओके बच्चे। थैंक यू सर। ओके बच्चे।